Shall we start now? Okay, I am audible. Yes, okay, Tejas. Yeah, what we have learned last lecture, we'll just recall all these things. We have started with the normalization process. Yes, what normalize means? Normalization process means, or what happens in normalization? Yes, whenever you have a bad design, you will be converting that bad design into a good design. And that conversion process of designing a bad to convert bad design to a good design is nothing but called as normalization. Now, whenever we talk about normalization, normalization will help us to remove redundancy. Yes, सबसे पहले उसका टास्क क्या है कि आपके टेबल में से यू हैव टू रिमूव द रिडंडेंसी एंड सेकंड पार्ट इज यस there should be no any insert, delete, or update anomaly in your table. So you have to think on your focus will be on these two things. Now what we have learned in last lecture is what is functional dependency. Now functional dependency is nothing but whenever you have a two attributes. Suppose you have a roll number and name. Now you have decided that name will roll number will be dependent on name, or we can make it as name is dependent on roll number. So that kind of condition, like if I have roll number, I can get the name of the student, or if I have a name, I'll get the roll number of that student. That type of conversion is nothing but we can call it as functional dependency. Now whenever we write functional dependency, I'll just share my screen. Now functional dependency is written like, my screen is visible. Yes, ma'am. Okay, fine. Now in functional dependency, if suppose I have roll number which is dependent on name. So here we read like name is dependent on roll number, meaning without roll number that name doesn't have any existence. Okay, so we read this arrow mark as name is dependent on roll number, or here we call roll number as determinant, and we can call name as dependent. Okay, so that we have seen about functional dependency. Now functional डिपेंडेंसी में ऐसा भी हो सकता है, जैसे अगर सब मान लो आपके पास एक टेबल है, आज मुझे सबका अटेंडेंस स्टोर करना है उस टेबल के अंदर, तो मैं स्टोर टेबल के अंदर अटेंडेंस कैसे स्टोर करूंगी? आई स्टोर रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर उसका कोर्स आईडी जो भी वो कोर्स कर रहा है उसका कोर्स आईडी, फिर उसका स्टेटस ऑफ अटेंडेंस आइदर वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इसे फोर है, फोर एट्रीब्यूट आई हैव डिसाइडेड। तो इसमें अगर मुझे फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो मैं सिर्फ नाम लिखूं तो मतलब नहीं है, लेकिन अगर मैं रोल नंबर से जान लूं कि मैंने ये रोल नंबर असाइन किया, मतलब आई एम फोकसिंग ऑन, जैसे आपके रोल नंबर में होता है टी, फिर अगर एससी का स्टूडेंट हो तो एससी लिखते हो हम स्टार्ट में, तो दिस मीन्स टी कॉम का कोई स्टूडेंट है, तो बेस्ड ऑन दिस रोल नंबर यू गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। सो हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे फंक्शनल डिपेंडेंसी बनानी है तो आई विल मेक दिस एज नेम, कोर्स आईडी और उसका स्टेटस। ठीक है, ये हो गया फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे क्या है, इफ आई हैव अ रोल नंबर आई कैन गेट इट्स कोर्स आईडी, आई कैन गेट द स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट, और आई कैन गेट द नेम ऑफ द स्टूडेंट। सो दीज थ्री पैरामीटर्स हैव only value when there is a roll number assigned to this. Okay, this is what about functional dependency tells us. Then we have seen normalization process. अब normalization process में होता क्या है, there are different forms. We have seen unnormalized. Unnormalized ये आपका previous form का data है. We directly start with 1NF. 1NF में क्या होता है? Yes, 1NF में what happens? Unnormalized data is converted into a structured format or a table. सबसे पहले आप अननॉर्मलाइज डेटा होता है, एंड आप अननॉर्मलाइज डेटा को कन्वर्ट करते हो इन ऑटोमिक, है ना, कन्वर्ट
इन ऑटोमिक, ऑटोमिक मतलब ऑटोमिक वैल्यू। जैसे अगर सब मान लो आपके पास एक टेबल है, ठीक है, उस टेबल में आपने इस तरीके से स्टोर किया, रोल नंबर, नेम। अभी आप ऐसे कभी नहीं लिख सकते हो ना, नेम उसका ए भी है और बी है, तो एक सेल में आप मल्टीपल कॉमा सेपरेटर वैल्यू कभी नहीं डाल सकते हो। सो यू हैव टू मेक दैट कि अगर उसके दो नाम है तो यू हैव टू मेक अ टेबल, उसका क्या होगा दूसरा टेबल, एंड यू विल पुट एस नेम टू। समझ में आ रहा है? सो फॉर माय केस दिस नेम कॉलम इज अ, वी कैन कॉल इट एज कंपोजिट ऑपरेट, वी कैन, सॉरी नॉट कंपोजिट, इज अ मल्टी वैल्यूड। सो मल्टी वैल्यूड है, इसीलिए आपके क्या होंगे, दो कॉलम आपके टेबल में दिखाएंगे। तो आप कॉमा सेपरेटर कभी नहीं डालते हो, तो एक सेल में सिर्फ एक ही वैल्यू मिलती है। तो हम लोग अननॉर्मलाइज डेटा को क्या करते हैं, अननॉर्मलाइज डेटा को हम कन्वर्ट करते हैं इन ऑटोमिक, ऑटोमिक वैल्यूज, मीनिंग ओनली कि आप सभी जो भी वैल्यूज है उसको आप एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। सो यू विल नेवर फाइंड इन अ टेबल एनी कॉमा सेपरेटर। ठीक है, अभी ये हो गया, हम लोगों ने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखा। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म व्हाट हैपेंस इज, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, इट शुड बी फर्स्ट एनएफ, वो फर्स्ट एनएफ में होना ही चाहिए। एंड एंड क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है प्राइमरी की, बराबर, सिलेक्ट प्राइमरी की, ये हम लोगों का टास्क होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्शियल डिपेंडेंट कॉलम को रिमूव करते हैं, बराबर, यस। इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तीन स्टेप्स करते हैं। पहली स्टेप क्या है कि आपका टेबल्स जो भी है वो 1NF में होना ही चाहिए। सेकंड है हम उसमें प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं। अब आप सिलेक्ट कैसे करते हो प्राइमरी की, अब इसके ये प्राइमरी की मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्राइमरी की आपने डिसाइड की थी, लेकिन एक्चुअली प्राइमरी कीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करवाती हूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले होता है सुपर की, फिर होता है कैंडिडेट की, ठीक है, फिर कैंडिडेट की से बनता है प्राइमरी की। ये तीन स्टेप का प्रोसेस होता है। अभी आप लोगों को लगता है कि ये टेबल में से सपोज आई वांट टू गेट, इसमें प्राइमरी की क्या होगी, तो आपने क्या डिसाइड करोगे, आपके पास ऑप्शन क्या है, यस आपके पास ऑप्शन क्या है, इसमें प्राइमरी की कौन सी आपने सिलेक्ट की, रोल नंबर, लेकिन रोल नंबर ही क्यों, नेम ही क्यों, सपोज मेरे पास ऐसे कॉलम्स होते हैं, मैं नेम, आई चेंज दिस टेबल, एंड मैं यहाँ पे एड्रेस लिखती हूँ, ठीक है, मेरे पास तीन ही ये है। ठीक है, ये मेरे पास टेबल है, आप टेबल देख रहे हो, हाँ टेबल में क्या है, मैंने यहाँ पे रोल नंबर, नेम और एड्रेस तीन कॉलम्स लिए। अब मैंने रोल नंबर को एक यूनिक वैल्यू दी है, नेम को भी मैंने यूनिक वैल्यू दी है, और एड्रेस को भी मैंने यूनिक वैल्यू दी है। मैं इंस्पाइट ऑफ एड्रेस एक कॉमन वैल्यू लेती हूँ, ठीक है, मैंने पुणे डाल दिया। अब ये मेरा टेबल है ना, दिस इज माय टेबल। अभी अगर मुझे इसके सुपर की फाइंड करना है, तो सुपर की मतलब क्या, जितने भी कॉम्बिनेशन जहां से आपको लगता है कि ये की बन सकती है, एक उसको बोल सकते हैं हम एक यूनिक की बन सकती है, वो सभी के कॉम्बिनेशन आपको सुपर की में लिखने होते हैं। तो सुपर की इज ऑल द सेट ऑफ ऑल द डिफरेंट कीज विच कैन विच कैन बी कॉल्ड एज एन यूनिक कीज ऑफ दैट टेबल। अभी यूनिक की मतलब क्या, सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं रोल नंबर को क्या बना सकती हूँ, इट्स अ सेट, सो आई यू राइट इन अ कर्ली ब्रैकेट, मेरे पास एक ऑप्शन है रोल नंबर, एक मेरी सुपर की हो सकती है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, मैं नेम को सेपरेटली एक की बना सकती हूँ, बराबर। वाई मैं नेम को बना सकती हूँ, क्योंकि ए एंड बी आर प्लेइंग एज डिफरेंट वैल्यूज, सो ये अपने आप में यूनिक दिखा रहा है, ठीक है। फिर हम नेम को एक दूसरा वैल्यू बनाते हैं। अब मेरे पास तीसरा ऑप्शन क्या है इसका, अभी एड्रेस ले सकते हैं क्या अपन, नहीं ले सकते, बिकॉज एड्रेस क्या है, यूनिक नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एड्रेस को अगर मेरे को की बनानी है, तो मेरी सुपर की का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, मैं रोल नंबर प्लस एड्रेस लूं, बराबर। सो मेरे पास और एक सबसेट आता है जिसमें रोल नंबर कॉमा एड्रेस, बराबर। फिर ये एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, मैं नेम कॉमा रोल नंबर ले सकती, सॉरी एड्रेस ले सकती हूँ, यस।
और कौन सी की बनेगी? सारे कॉम्बिनेशंस आपको लेना है जो भी टेबल में पॉसिबल है, जिसके लिए आप की बना सकते हो। ठीक है, अभी ये हो गए 4 कॉम्बिनेशन। पांचवा कॉम्बिनेशन में क्या ले सकती हूँ? रोल नंबर प्लस नेम प्लस एड्रेस। तो मेरे पास और एक कॉम्बिनेशन आता है, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा एड्रेस। और कौन से कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ रहा है कि जो हो सकता है? हम लोग है ना रोल नंबर कॉमा नेम भी ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के यूनिक बना सकते हैं, तो भी चलेगा। लेकिन फॉर मी दिस कॉम्बिनेशन डजंट वर्क बिकॉज ऑलरेडी वो रोल नंबर और नेम क्या है? यूनिक है, तो ऐसी कॉम्बिनेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अनकॉमन कॉम्बिनेशन है जिससे आपको यूनिकनेस प्रूफ कर सकते हैं, वो सभी का सेट जो बनता है उसको बोलते हैं सुपर की। दीज आर ऑल एक्टिंग एज सुपर की। अब कैंडिडेट की क्या बोलता है? जितने भी आपने सुपर की बनाए उसमें से ऐसे कीज बनाओ जो किसी का सुपर सेट ना हो। तो ये बोलता है मिनिमल सुपर सेट फाइंड करो। मिनिमल सुपर सेट। मिनिमल सुपर सेट मतलब इसमें हम लोगों को कोई भी की ऐसे सिलेक्ट करो जिसके अंदर कोई दूसरा की ना हो जो उसका सबसेट ना हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सुपर की है तो सुपर इज की इज सुपर सेट। अभी उसका सबसेट फाइंड करना है, सबसेट फाइंड करना, लेकिन वो क्या होना चाहिए? मिनिमल सुपर सेट। मतलब जहाँ पे आपके सुपर सेट के अंदर मल्टीपल टाइम्स वो रिपीटेड की नहीं होने चाहिए, मतलब वो सेट में नहीं होने चाहिए। तो अभी मैं पहला कॉम्बिनेशन लेती हूँ रोल नंबर। तो रोल नंबर किसी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि रोल नंबर खुद में एक अलग एंटिटी है। तो हम लोग रोल नंबर एक लेते हैं कैंडिडेट की। दूसरी की क्या होगी? नेम। ठीक है, अब तीसरी की देख लो, रोल नंबर और एड्रेस। तो रोल नंबर ऑलरेडी किसी का सब ऑलरेडी सेट में है ना, रोल नंबर। सो हम लोग ये क्या बन गया? इसका सबसेट बन जाएगा। ठीक है, बराबर। तो हम लोग ये नहीं ले सकते रोल नंबर प्लस एड्रेस का कॉम्बिनेशन फॉर कैंडिडेट की। फिर आप नेम ले लो, नेम प्लस एड्रेस, लेकिन नेम किसी नेम ऑलरेडी सेट में है, तो ये उसका सुपर सबसेट हो गया, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। फिर हम लोगों ने ये कॉम्बिनेशन ट्राई करने की कोशिश की, नेम रोल नंबर एड्रेस। तो ऑलरेडी रोल नंबर और नेम क्या हमारे सेट में है, तो ये उसका सबसेट हो गया, तो ये भी नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास कैंडिडेट की क्या बचती है? जो मिनिमल सुपर सेट है, और वो है रोल नंबर और नेम। गेटिंग माई पॉइंट? फिर हम लोग क्या डिसाइड करते हैं? हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर रोल नंबर और नेम। तो हमारी इस टेबल की प्राइमरी की कौन सी बनेगी? आइदर रोल नंबर और नेम। इसीलिए हम डिसाइड करते हैं कि ये टेबल की प्राइमरी की कौन हो सकती है, आइदर रोल नंबर और नेम। ये डिपेंड करता है अपने चॉइस पे। सो हम लोग इसमें से एक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दो वो एक्ट करती है हमारे टेबल की प्राइमरी की। इस तरीके से वी कैन डिसाइड कि हमारे टेबल की प्राइमरी की कौन सी हो सकती है। सो डायरेक्टली वी कुड नॉट जज। अभी हम लोगों को नहीं पता था सुपर सेट क्या है, कैंडिडेट की क्या है, सुपर की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, प्राइमरी की क्या है। तो तब तक हमने क्या सोचा था कि जो यूनिक दिख रहा है और एक सिंगल कॉलम है जो मिनिमल दिख रहा है, उसी को हम सिलेक्ट कर रहे थे। लेकिन दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ सुपर की, कैंडिडेट की, और फिर आपको जाना पड़ता है प्राइमरी की सिलेक्शन में। यहाँ तक समझ में आया? सो हेंस वी हैव डिसाइडेड क्या, आइदर रोल नंबर मेरी प्राइमरी हो सकती है या फिर नेम। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज, फर्स्ट एनएफ में तो है ही डेटा ऑलरेडी, ये फर्स्ट एनएफ में है क्योंकि अननॉर्मलाइज्ड है और सभी के लिए ऑटोमिक वैल्यू है। सेकंड हमने प्राइमरी की सिलेक्ट की है, और थर्ड बोल रहे हैं कि पार्शियल डिपेंडेंट कॉलम को रिमूव करना। अब यहाँ से पार्शियल डिपेंडेंट कॉलम कौन सा है? पार्शियल डिपेंडेंट मतलब प्राइमरी की क्या है? रोल नंबर, बराबर। अब रोल नंबर पे ही क्या डिपेंडेंट है? नेम। और रोल नंबर पे ही क्या डिपेंडेंट है? एड्रेस, बराबर ना? यस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई पार्शियल डिपेंडेंट कॉलम है क्या? यस। सी रोल नंबर है तो एड्रेस है, उसी नाम का एड्रेस है। तो रोल नंबर, अगर नेम रोल नंबर पे डिपेंडेंट है तो एड्रेस भी किस पे डिपेंडेंट होगा? नेम रोल नंबर पे, इधर नेम पे, दोनों में कोई भी प्राइमरी बना लो। सो वी कैन मेक दैट इसमें पार्शियल डिपेंडेंट कॉलम है ही नहीं। समझ में आ रहा है? यस। सो ये टेबल अभी किस में है? दिस टेबल इज इन 2NF। भी यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स तो बने नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रूफ करवा सकते हैं कि ये टेबल ऑलरेडी 2NF में है। समझ में आ रहा है? यस। यस, एनी डाउट?
किसी को कोई डाउट नहीं? इतना इजी लग रहा है आपको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस? ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर? अभी सब मान लो आई एम स्टिल, हम लोग 2NF का एक एग्जांपल देखेंगे। मेरे पास है प्रोडक्ट आइटम नेम, देन आई हैव कलर, देन मेरे पास उसका प्राइस है और उसका टैक्स है। ये 4 कॉलम है। वी कैन मेक इट एक टेबल है। डोंट थिंक मच मोर ऑन द वैल्यूज व्हाट आई हैव रिटन। आपका फोकस क्या होना चाहिए? टेबल के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, नाउ सी सपोज आई एम हैविंग दिस सच काइंड ऑफ टेबल। यस, नाउ दिस टेबल इज ऑलरेडी इन 1NF, है या नहीं? यस, हाँ या नहीं? आप लोग बोल तो सकते हो ना? ये टेबल ऑलरेडी 1NF में है क्योंकि हर एक कॉलम को एक सिंगल वैल्यू मिल रही। यस, अभी मुझे बताओ, आपका जो 2NF का रूल है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपकी प्राइमरी की क्या होगी? इस कौन बताएगा? यस, प्राइमरी की क्या होगी? ठीक है, हाँ, किसने बोला है आंसर्स? यस, ऋषभ कुमार, फिर कार्तिक, अश्विनी, करेक्ट। हाँ, क्यों हम लोगों ने आइटम नेम ने? क्योंकि शर्ट एंड शर्ट इज रिपीटेड, सो वी कुड नॉट मेक दिस एज एन सिंगल प्राइमरी की। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इस केस में? आपको combination of primary key will be acting as true, like shirt plus blue color. It will be make with which will make sense that both the combination will act as an unique. तो शर्ट है लेकिन रेड कलर का है, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? यूनिक डिफाइन करेगा। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि अपनी प्राइमरी की क्या है। yes, what is our primary key is item name and color. Now we have decided that is प्राइमरी की हमने डिसाइड कर ली। ठीक है, अभी मुझे बताओ, ये टेबल 2NF में है या वी हैव टू मेक अ कन्वर्जन? सी, मेरा पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या आएगा? आइटम नेम, और उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? सॉरी, आइटम नेम प्लस कलर। अब बताओ, प्राइस किस पे डिपेंडेंट है? प्राइस किस पे डिपेंडेंट है? आइटम प्लस कलर। यस और नो? यस। हाँ, तो हम लोग क्या लिखते हैं? यस। ठीक है, सो हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि ये क्या है? ये फुल्ली डिपेंडेंट है, पार्शियल डिपेंडेंट तो नहीं है प्राइस कॉलम। हाँ, अब मुझे बताओ, टैक्स एंड प्राइस में और इसमें क्या रिलेशन है? फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगी? हम्म, प्राइस का तो हो गया, अभी टैक्स का क्या आएगा फंक्शनल डिपेंडेंसी? टैक्स किस पे डिपेंडेंट है? प्राइमरी की पे है।
यस, कार्तिक एब्सोल्युटली करेक्ट है। अभी देखो यहाँ पे प्राइस किस पे डिपेंडेंट है, आइटम प्रोडक्ट पे प्लस उसका कलर। तो आइटम नेम प्लस कलर पे प्राइस डिपेंडेंट है, लेकिन टैक्स किस पे डिपेंडेंट है, प्राइस पे। सो टैक्स पार्शियल डिपेंडेंट कॉलम है इस टेबल का। सो इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे होता है, प्राइस टैक्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि टैक्स इस पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि प्राइस इस पे डिपेंडेंट है इसीलिए हम बोलते हैं कि टैक्स भी उस पे डिपेंडेंट है, लेकिन एक्चुअली टैक्स नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, दिस टेबल इन टू एन एफ, इन टू एन एफ में कैसे दिखेंगे, फर्स्ट टेबल फॉर्म होगा जिसके पास होगा आइटम नेम, कलर, प्राइस। आपके पास दूसरा टेबल बनेगा जिसमें होगा प्राइस प्लस टैक्स। तो आपके इसमें इस में से टू एन एफ में से अगर आप देख रहे हो तो टू एन एफ में हम लोगों के पास दो टेबल्स आते हैं, एक तो है आइटम नेम, कलर एंड प्राइस, एंड दूसरा टेबल होगा प्राइस प्लस टैक्स। समझ में आ रहा है? सो नाउ दिस टेबल फॉर्म्स इन टू एन एफ। यस, समझ में आ रहा है? क्लियर विद दिस? यस, एनी डाउट? Okay, fine. Now we'll be starting with our next normal form, that is 3NF. 3NF tells that 3NF आपका टेबल 2NF में होना ही चाहिए, या टेबल शुड बी इन 2NF, एंड यू हैव टू ट्रांसी, ये बोलता है 3NF, यू योर टेबल शुड बी इन 2NF एंड यू हैव टू रिमूव ट्रांसिटिविटी डिपेंडेंसी। अब ट्रांसिटिविटी डिपेंडेंसी क्या होता है? सो वेन एवर वी हैव एन फंक्शनल डिपेंडेंसी लाइक ए इज डिपेंडेंट ऑन बी एंड बी इज डिपेंडेंट ऑन सी, then we can tell that A is dependent on C. समझ में आ रहा है? सो बाय दिस रूल वी कैन प्रूव दैट दिस इज ट्रांसिटिविटी डिपेंडेंसी। मतलब आप कॉलम बी किस पे डिपेंडेंट है, ए पे, और कॉलम सी बी पे डिपेंडेंट, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सी क्या है, ए पे डिपेंडेंट है। जैसे फॉर दिस केस हमने क्या लिखा था कि आइटम और कलर का कॉम्बिनेशन लिया, ये एक्ट करती प्राइमरी की, तो हमारे लिए ये दोनों मिला के ए हो गया। अब बी क्या है, प्राइस, तो बी इज डिपेंडेंट ऑन ए, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, सी इज डिपेंडेंट ऑन बी। ये टेबल एक साथ क्यों दिख रहा है, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस वी हैव पुट दैट, इसीलिए आइटम नेम प्लस प्लस कलर पे क्या डिपेंडेंट है, तो टैक्स। इस तरीके के जो कॉम्बिनेशंस आते हैं टेबल में, वो आपको रिमूव करना है ट्रांसिटिविटी डिपेंडेंसी, वो टेबल से रिमूव करवाना है। ट्रांसिटिविटी डिपेंडेंसी को रिमूव करने का रूल ही क्या बोलता है, 3NF। तो 3 मतलब इट्स कॉल्ड एज, ये तुम्हारा टेबल 2NF में होना चाहिए, एंड यू हैव टू रिमूव दिस ट्रांसिटिविटी डिपेंडेंसी फ्रॉम द टेबल इफ एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट, ओके। यस, इफ इट एग्जिस्ट यू हैव टू रिमूव। अब हम लोग सिमिलर एग्जांपल में देखेंगे, तो यहाँ पे ट्रांसिटिविटी डिपेंडेंसी है क्या, नहीं, क्योंकि हमने 2NF करते करते ही 3NF का रूल भी सॉल्व कर दिया, तो ये टेबल बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, 3NF में है। समझ में आ रहा है? यस, ये टेबल इटसेल्फ इट इज इन 3NF। अब मेरा दूसरा एग्जांपल है, अभी हम लोगों को 1, 2 एंड 3NF अप्लाई करना है फॉर दिस गिवन एग्जांपल। सो यू गॉट दिस 2, 3 NF में क्यों क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी कॉलम को रिमूव करवा रहे हैं अभी। अभी मैं ना टेक्स्ट में वैल्यू नहीं लूंगी, लेकिन आप लोगों को एक टेबल दे रही हूँ, ठीक है।
ये एक टेबल है, सी, दिस इज अ टेबल, एंड वो टेबल के कॉलम क्या है, कस्टमर आईडी है, या सॉरी कस्टमर नहीं, इट शुड बी ई आई डी। ठीक है, मेरे पास इतना ये टेबल है। ई आई डी है, ई नेम है, एम्प्लॉय का नेम है, उसका प्रोजेक्ट आईडी है, प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का हेड है, आवर्स है, सिटी है, स्ट्रीट है, और जिप कोड है। ये मेरा टेबल है, इतना बड़ा सारा। ठीक है, अब इस टेबल को मुझे 1 2 एंड 3 NF में प्रोसेस करवाना है। तो आप लोग क्या करोगे, व्हाट विल बी योर फाइनल टेबल्स आफ्टर अप्लाइंग 1 2 and 3 NF? मैं वैल्यूज दूं या आप लोग कंसिडर करोगे? सी, यहाँ पे ई आई डी यूनिक है, ई नेम यूनिक है, प्रोजेक्ट आईडी मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, प्रोजेक्ट नेम मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, प्रोजेक्ट हेड मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं, आवर्स बेस्ड ऑन द, मतलब हर एक का एम्प्लॉय आईडी का वर्किंग आवर्स डिफरेंट है, सिटी कॉमन हो सकती है, स्ट्रीट कॉमन हो सकती है, और जिप कोड भी कॉमन हो सकता है। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी देयर इन फर्स्ट एन एफ, 2 NF एंड 3 NF। 1 NF में तो इन सबको एक वैल्यू मिल जाएगी, तो कंसिडर कर लो ये टेबल ऑलरेडी 1 NF में है। अब आप लोग अप्लाई करो 2 NF और 3 NF। कैन यू अप्लाई 2 NF एंड 3 NF? यस, कर सकते हो। एग्जाम में आपको ऐसे ही कुछ टेबल्स मिल सकते हैं, या फिर दे विल आस्क यू राइट अ नोट ऑन। तो आपको खुद से एक एग्जांपल सिलेक्ट करके यू हैव टू प्रूव 1 NF, 2 NF एंड 3 NF। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। नाउ हु विल टेल मी? यस, सोचा? चलो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करें। मैं टेबल की वैल्यू नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन यू हैव टू कंसिडर। अब मुझे बताओ, व्हाट विल बी द प्राइमरी की? वैल्यूज दो आप लोगों को डाल के। ई आई डी, नेम और प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट हेड, एंड आवर्स। ई आई डी, नो, नो कार्तिक। सी, मैं ना टेबल में वैल्यू डालू क्या? Shall I give you some values with the table? Then will be that will be easy. So what I'll do is, ठीक है।
हाँ, ये विजिबल है टेबल? यस। यस, आप बोलते चलो, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो आप लोग बोलते चलोगे तो मुझे समझ में आएगा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हाँ। क्यों वॉइस से नहीं बोल सकते हो क्या आप? हर बार टेक्स्ट डालना नेसेसरी है? ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे देख लो, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोगों को प्राइमरी की सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ से 2 NF में है, तो ऑलरेडी ये टेबल क्या 1 NF में दिख रहा है, तो हमें 1 NF प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक वैल्यू क्या है, ये खुद में एक डिफरेंट वैल्यू है, मतलब ऑटोमिक है। सो विल मूव डायरेक्टली फॉर 2 NF। तो 2 NF में पहला स्टेप क्या है, 1 NF में एक चेक करो, ऑलरेडी है। फिर हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या, हमें प्राइमरी की डिसाइड करनी। अब मैं अगर ईआईडी को प्राइमरी की बनाऊँ तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ईआईडी को प्राइमरी की नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि वन वन एक बंदा एक से ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव दिस केस। सो अभी नेम देखो, तो 1+A अगर मैं कॉम्बिनेशन में भी लू, सो इट विल नॉट गिव मी अ प्राइमरी की। बराबर। सो अभी मैं आगे के कॉलम पे जाती हूँ, प्रोजेक्ट आईडी। अब प्रोजेक्ट आईडी क्या है, 101, और इसका प्रोजेक्ट आईडी क्या है, 10। भले ही वो बंदा एक ही है, लेकिन वो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ईआईडी प्लस प्रोजेक्ट आईडी कैन प्रूव क्या है, दैट इज एक्टिंग एज यूनिक की। बराबर। अब प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट आईडी को कॉम्बिनेशन लो, तो ये दोनों भी क्या प्राइमरी की नहीं बन सकते। बराबर। यस। नाउ प्रोजेक्ट हेड रिपीटेड है, आवर्स रिपीटेड हो सकते हैं, सिटी रिपीट हो सकती है, स्ट्रीट रिपीट हो रही है, जिप कोड रिपीट हो रहा है। तो पूरे इसमें हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन ले, तो हमें एक चीज तो है कि ये बंदा काम कर रहा है और उसकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स है। तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है, आइदर नेम में और प्रोजेक्ट में। तो हमारे लिए प्राइमरी की कौन सी बनेगी, ई आई डी बराबर प्लस, ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, मैं नोटपैड भी ओपन करवाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे लिए इस टेबल से कॉम्बिनेशन क्या होगा, प्राइमरी की का कॉम्बिनेशन क्या है, ई आई डी प्लस प्रोजेक्ट आईडी। ये मेरा क्या होगा, प्राइमरी की। अब इस हम लोगों को सेकंड एनएफ क्या बोलता है, पार्शियल डिपेंडेंट कॉलम को रिमूव करो। अब इसमें से पार्शियल डिपेंडेंट कॉलम कौन सा है, तो हम सबसे पहले अभी ईआईडी और प्रोजेक्ट का कॉम्बिनेशन हो, तो पहले ई नेम जाते हैं। तो ई नेम क्या है, ई नेम ईआईडी पे फंक्शनल डिपेंडेंट है, ई नेम। बराबर। यस। यस और नो? यस मैम। हाँ, तो ई नेम किस पे डिपेंडेंट है, ईआईडी पे, लेकिन ई नेम और प्रोजेक्ट आईडी का कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप ईआईडी से उसका ई नेम जान सकते हो और ईआईडी से उसका प्रोजेक्ट आईडी जान सकते हो, लेकिन ई नेम का और इसका रिलेशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है। बराबर। सो हम लोगों को क्या करना है, ये क्या पार्शियल डिपेंडेंट कॉलम है, तो हम लोगों को ई नेम को रिमूव करना है। समझ में आ रहा है? फर्स्ट केस। अभी देख लो दूसरा केस, देख लो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम है, तो प्रोजेक्ट का नेम रिपीट हो रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट नेम और ई नेम में कोई रिलेशन नहीं है, या प्रोजेक्ट नेम और ईआईडी में कोई रिलेशन नहीं। प्रोजेक्ट नेम किसका है, प्रोजेक्ट आईडी को दिया हुआ नेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, और एक रिलेशन हमें पता चलता है जिसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि आईडी प्रोजेक्ट आईडी पे क्या डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट का नेम। बराबर। हम्म। अभी नेक्स्ट कॉलम देखो, प्रोजेक्ट का हेड। तो प्रोजेक्ट हेड किस पे डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट आईडी पे, नॉट ईआईडी पे। दोनों के कॉम्बिनेशन में वो पार्शियल डिपेंडेंट है। बराबर। तो हम लोगों को प्रोजेक्ट हेड इस कॉलम इस प्रोजेक्ट हेड किस पे डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट आईडी पे, नॉट ऑन ई नेम, सॉरी ईआईडी, क्योंकि वो पार्शियली डिपेंडेंट है। बराबर। यस। तो प्रोजेक्ट हेड यहाँ से निकल रहा है। फिर आवर्स, आवर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लस प्रोजेक्ट प्लस ईआईडी पे। मतलब आवर्स इस पे टोटली डिपेंडेंट है कि वो बंदा कौन है और उसका उस प्रोजेक्ट का आईडी क्या है, उस पे आवर्स डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग आवर्स यहाँ रखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी में। फिर आता है सिटी। अब सिटी किसका है, बंदे का सिटी है। इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कौन सा सिटी में चल रहा है वो नहीं मैटर कर रहा है, ये किसकी इंफॉर्मेशन है, सिटी, स्ट्रीट और जिप कोड। ये एक एम्प्लॉय की हो सकती है। ठीक है। या फिर अगर आपका सिनेरियो ऐसा हो कि वो बंदा उस प्रोजेक्ट पे उस सिटी में काम कर रहा है, सो तब हम बता सकते हैं कि सिटी, हम लोग अभी के केस में क्या कर रहे हैं,
कि ये प्रोजेक्ट के डिटेल्स, मतलब वो बंदा एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट पे कौन से सिटी में काम कर रहा है, इसीलिए मैं सिटी, स्ट्रीट और जिप कोड यहाँ लेना चाहती हूँ। समझ में आ रहा है? यस। अब हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, इसीलिए मैं ऐसे डिसाइड कर रही हूँ कि सिटी, स्ट्रीट और जिप कोड यहाँ आ जाएगा। अदरवाइज अगर ये चीजें एम्प्लॉय के बारे में पूछी होती तो उसने एम्प्लॉय के बाद उसके डिटेल्स दिए होते, लेकिन टेबल में वैसा स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसा होता तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करके यहाँ लेके जाती। समझ में आ रहा है? अभी मेरे केस में मैं प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे ही रख रही हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये इसमें 2NF प्रोसेस करने के बाद ये तो फिक्स्ड हो गया कि ई नेम किस पे डिपेंडेंट है, ई आईडी पे। प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट हेड किस पे डिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट आईडी पे। और ये जो सब है, सिटी, स्ट्रीट और जिप कोड, ये लोग सब किस पे डिपेंडेंट है, ई आईडी प्लस प्रोजेक्ट आईडी पे डिपेंडेंट। तो हम लोगों ने सेकेंड एनएफ में और पार्शियल डिपेंडेंसी वाले कॉलम को रिमूव किया, तो हमें 3 टेबल्स मिल रहे हैं। क्लियर? वी आर गेटिंग थ्री टेबल्स। वन इज ई आई डी, project ID, comma, hours, comma, city, comma, street, comma, zip code। बराबर, ये एक टेबल है। ठीक है, ये एम्प्लॉय प्लस प्रोजेक्ट का डिटेल्स है। दूसरा बनेगा एम्प्लॉय टेबल, उसके पास सिर्फ ई आई डी और ई नेम होगा। एंड थर्ड टेबल हम लोगों को मिलेगा जिसमें होगा प्रोजेक्ट आईडी, कॉमा, प्रोजेक्ट नेम, कॉमा, प्रोजेक्ट हेड। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को आफ्टर 2NF विल गेट 3 टेबल्स। और आपने देखा होगा, ड्यू टू दिस समहाउ रिडंडेंसी इज रिमूव्ड। स्टिल रिडंडेंसी किस में आ रही है, स्ट्रीट, सिटी और जिप कोड में आ रही है ना? यस, आ रही है नहीं? ठीक है, मैं टेबल ड्रॉ करके बताऊं यहाँ पे। अभी आपको थोड़ा सा फ्लेवर दिखेगा। अभी यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ई आई डी, फिर ले रहे हैं प्रोजेक्ट का आईडी। बराबर। तीसरा कॉलम हम लोग क्या ले रहे हैं, सिटी, आवर्स है ना, सिटी। और क्या आ रहा है, स्ट्रीट और जिप कोड। ठीक है। मैम वो हाँ एड्रेस डिटेल्स हम ईआईडी के टेबल में क्यों नहीं ले सकते? हाँ, बता रही हूँ बता रही हूँ, एक ही मिनट। हाँ, ये हो गया मेरा फर्स्ट टेबल। यस। अभी दूसरा टेबल क्या बन रहा है, ये आईडी, ई नेम। बराबर। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, ई आई डी 1 है, नाम उसका ए है। दूसरा है ई आई डी 2, उसका नाम बी है। करेक्ट। ये तो है ही नहीं कॉलम। और तीसरा टेबल जो बना हम लोगों का, वो टेबल कौन सा था, या ऑनलाइन में ये सब चीज़ें बहुत टाइम जा रहा है। नेक्स्ट टाइम से मैं देखती हूँ ये टेबल बना। एक्चुअली वो बना के रखा ना तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आता है। वो ऐसा लगता है कि कुछ तो करके रखा है एंड यू आर जस्ट व्यूइंग दैट वर्चुअली। अभी यहाँ पे क्या किया हमने, प्रोजेक्ट का आईडी लिया। ठीक है,
फिर लिया प्रोजेक्ट का नेम, बराबर, और तीसरा लिया प्रोजेक्ट का हेड। यस, अभी प्रोजेक्ट का आईडी क्या है, 101, दो ही प्रोजेक्ट है ना, 101 102, इसको लिया आई थिंक एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। और यहाँ पे हम लोगों ने हेड लिया है। अच्छा, ये था बी आई और ये एम एल। ठीक है, समझ में आ रहा है। अपना ओरिजिनल टेबल क्या था, हम्म, जिसमें कितना पार्ट रिडंडेंट था, ये पार्ट रिडंडेंट, ये पार्ट रिडंडेंट, ये पार्ट रिडंडेंट, फिर ये सब चीजें रिडंडेंट आ रही थी। फिर भी हमने कुछ हद तक रिडंडेंसी को रिमूव करना सीखा, करेक्ट। और आप देखो तो आप पूरे तीनों टेबल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं। हाँ, सी आपको अगर ईआईडी पता है तो आप ईआईडी को इस ईआईडी के साथ मैच कर लो तो आप उसका ई नेम जान सकते हो। अगर आपके पास प्रोजेक्ट का आईडी है इस टेबल से तो आप उसका प्रोजेक्ट आईडी, नेम और हेड जान सकते हो। तो आप कोई भी काम करो तो आपका क्या होगा, पूरा जो डिटेल्स है वो एक साथ आ ही जाएगा। लेकिन इस टेबल में अगर आप देखोगे, सी इस टेबल में आप देखोगे तो व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टिल इज पेंडिंग, मतलब अभी ये सारे टेबल्स 2NF में है, लेकिन ये पार्ट है जो फिर भी रिडंडेंट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख रहा है या नहीं। हम्म, तो अभी इसको रिमूव करना है कैसे। तो अभी यहाँ पे हम लोग 3NF में जाएंगे। अब 3NF क्या बोलता है, ट्रांसिटिविटी डिपेंडेंसी को हटाना। यहाँ पे दिख रहा है क्या कोई ट्रांसिटिविटी डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पे है क्या, नहीं है। समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट हेड प्रोजेक्ट आईडी पे डिपेंडेंट है और नेम भी इस पे डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे देखो, आवर्स इन दोनों मिलके, ये दोनों मिला के प्राइमरी है ना, तो इन दोनों पे डिपेंडेंट है। लेकिन सिटी देखो, सिटी किस पे डिपेंडेंट है, इस पे, कौन से सिटी में प्रोजेक्ट वाला। लेकिन स्ट्रीट और इसका कोई रिलेशन नहीं है। स्ट्रीट किस पे डिपेंड करता है, सिटी पे, बराबर। जिप कोड किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रीट पे। लेकिन क्योंकि ये सब तीनों कॉम्बिनेशन में है, हम लोग इसको बोलते हैं कि ये इसको कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है। सो ये क्या हो गया, दिस पार्ट इज ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी। मतलब इसमें रिलेशन कैसे आएगा, यस। अभी हम लोगों को क्या करना है, फिर भी हमारा टेबल रिडंडेंट दिख रहा है ना, तो 3NF में हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है, ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी को। अब वो रिमूव करने के लिए क्या करोगे, यस, व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप लोगों को ये इसके लिए एक नया टेबल बनाना है। अब वो नया टेबल क्या होगा, सिटी, बराबर, और स्ट्रीट। यस, ये होगा आपका एक टेबल। समझ में आ रहा है। और आपका ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए आपको दूसरा टेबल बनाना होगा, सिटी और उसका जिप कोड, या फिर आप स्ट्रीट कॉमा जिप कोड लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। तो आपके कितने टेबल बनेंगे आफ्टर 3NF, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 टेबल्स होंगे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, जिसमें लेस अमाउंट में रिडंडेंसी मिलेगी। समझ में आ रहा है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हटानी है तो वो हर लेवल पे होनी चाहिए। अगर मैं जिप कोड को यहाँ लेके आती और एक नया टेबल बनाती, फिर भी यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रहती है ना, तो मुझे इनको भी रिमूव करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन टेबल को ब्रेक करना पड़ेगा। इन तीन तीन कॉलम्स को मुझे दो टेबल्स में डिवाइड करना पड़ेगा टू रिमूव दिस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो मेरा एक टेबल बनेगा सिटी और स्ट्रीट, और दूसरा टेबल बनेगा सिटी और जिप कोड। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिप कोड किस पे डिपेंडेंट है, स्ट्रीट पे, और स्ट्रीट किस पे डिपेंडेंट, सिटी पे। तो हमारे टेबल्स क्या बनने चाहिए, इंस्पाइट ऑफ दैट सिटी और स्ट्रीट होना चाहिए, और दूसरा टेबल हम स्ट्रीट और जिप कोड का बनाएंगे इंस्पाइट ऑफ सिटी। समझ में आ रहा है। तो हमारे सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी के रूल्स प्रूफ होते हैं। यस, अभी किसने क्वेश्चन पूछा था, मैम आपने वो एम्प्लॉय के लिए क्यों नहीं लिया, सिटी स्ट्रीट और जिप कोड। ठीक है, देखो जनरलाइज जब भी आपको एक टेबल मिलता है, हम्म, वो टेबल, ये सब टेबल्स है, इसके साथ वैल्यूज भी मिलती है। ठीक है, अभी आप लोगों को, ये तो मैंने ऐसे ही फॉर एन एग्जांपल आपको टेबल दिया, लेकिन जब भी आप एग्जाम या कुछ सॉल्व करते हो तो दे विल गिव यू प्रॉपर गाइडलाइंस कि वो सिटी स्ट्रीट और जिप कोड किसके लिए ले रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे मैंने क्या सोचा, अगर एम्प्लॉय का डिटेल्स होता तो कॉलम कैसे लिखते हैं हम लोग, अगर टेबल्स बनाते तो हम क्या करते, एम्प्लॉय का पूरी चीज एक बार, फिर प्रोजेक्ट के डिटेल्स स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ईआईडी और प्रोजेक्ट आईडी दोनों साथ मिला के एंड में लिया सिटी, स्ट्रीट और जिप कोड। इसलिए मैंने कंसिडर किया कि ये उस बंदे ने उस प्रोजेक्ट में कौन से सिटी में काम किया है, इसके लिए मैंने सिटी और स्ट्रीट और जिप कोड को इनके कॉम्बिनेशन में लिया। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं बोला होता और ये कॉलम, ये जो तीनों कॉलम है, अगर ये यहाँ दिखते, समझ में आ रहा है, यहाँ दिखते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि ये किसकी डिटेलिंग है, ये कस्टमर की या एम्प्लॉय की। तो उस केस में मैं सिटी, स्ट्रीट और जिप कोड के कॉलम्स को यहाँ कंसिडर करती। बराबर है? ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हुआ? यस। आदर्श, किसने पूछा था क्वेश्चन? यस। सॉल्व हुआ या नहीं प्रॉब्लम्स? यस। कोई कुछ बोलेगा या नहीं? अंडरस्टूड मैम। हाँ। और आपको ये समझ में आया हम नॉर्मलाइजेशन से क्या बेनिफिट मिल रहा है आप लोगों को, कि आपका ओरिजिनल टेबल का मीनिंग चेंज नहीं होता, लेकिन आपके टेबल के रिडंडेंसी जो स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इंसर्ट, डिलीट और अपडेट में प्रॉब्लम होंगे, वो सॉल्व हो जाते हैं। तो आप लोगों को एट द एंड कितने टेबल्स मिले? फॉर दैट एग्जांपल इज 5। समझ में आ रहा है? अब प्रोजेक्ट के लिए आपको ऐसे ही काम करना है, लाइक प्रोजेक्ट में आपके टेबल्स में कितने कॉलम्स होंगे ये एक साथ लेना है। देन यू डिसाइड कि उसको ब्रेक कर करके इसको नॉर्मलाइज करके इसको गुड डिजाइन कैसे बनाए। एंड व्हेन योर टेबल विल बी फिक्स्ड, देन यू विल आस्क यूजर कि क्या इनपुट देना है, क्या नहीं देना है, कौन सी वैल्यू हम जनरेट करवाएंगे, कौन सी वैल्यू हम कैलकुलेट करवाएंगे। जैसे उसने डेट ऑफ बर्थ दी तो आप खुद एज कैलकुलेट करोगे, बराबर ना? सो लाइक दैट थिंग, तो यू हैव टू ऐड दैट कंटेंट्स। ठीक है, 3NF तक सबको समझ में आया? फॉर योर थ्योरी एग्जाम 3NF तक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जब भी ये क्वेश्चन आता है ना नॉर्मलाइजेशन पे, ये 8 या 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड आप एक खुद का एग्जांपल एक फॉर्म ही करके रखो कि इसको 1NF 2NF और 3NF में कैसे दिखते हैं। और विथ टेबल विथ प्रॉपर पेंसिल का रिमार्क लाइक दिस इज कॉम्बिनेशन प्राइमरी की, ऐसे सब रिप्रेजेंट करोगे, तो यहाँ पे आपके 1 मार्क भी नहीं जा सकता। नॉट अ सिंगल मार्क विल बी रिमूव फ्रॉम दैट क्वेश्चन। तो ये आपको फुल मार्क्स वाले क्वेश्चन है। ER डायग्राम आपका फुल मार्क का क्वेश्चन है। फिर तुम्हारा ये जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्ड्स के रूल है, 12 के 12 रूल आपको रटने ही है, ऐसे समझ लो। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपको यूनिवर्सिटी पेपर में पासिंग बहुत ईजी है। समझ में आ रहा है? फॉर दिस सब्जेक्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप क्वेरीज लिख पाए, हर एक एग्जाम में क्वेरी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। अगर आपका कमांड अच्छा है फॉर सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ क्वेरी, तो कोई भी क्वेरी आप कैसे भी फॉर्म में लिखो, द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू रिमूव देयर मार्क्स इफ इट इज अप टू द मार्क। हाँ, ऐसा नहीं आप कुछ भी लिखोगे एंड आउटपुट विल नॉट बी गेटिंग, वैसा नहीं होगा। ठीक है। मैं जब भी आप इनसेम इनसेम का एग्जाम जब भी आएगा, सो आई विल शो यू हाउ टू रिप्रेजेंट योर पेपर। तो उसमें आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी कोई चीज की। ठीक है। और कुछ फ्रॉम माय साइड दैट्स इट। आज हम लोगों ने 3NF तक देखे। अगर मैं आगे का कुछ पढ़ाऊंगी तो इट विल बी वेरी हैवी। सो आज हम लोगों ने क्या देखा, विल रिवाइज इन 2 मिनट्स। यस, हम लोगों ने 1NF 2NF और 3NF को रिवाइज किया। देन वी हैव सीन हाउ टू डिसाइड विच विल बी योर प्राइमरी की ऑफ योर टेबल बाय। यस, क्या क्या देखा हमने? super key. Then we have seen candidate key, and based on the candidate, which is the best suitable key is acting as a primary key of your table. Yes, then we have seen 3NF. 3NF में rule क्या says? What rule says is the table should be by default in 2NF, and you have to remove transitivity dependency from your table. Clear? Yes. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मैं और एक एग्जांपल लूंगी एंड विल क्लियर विथ 1 2 and 3 NF। बाकी जो NF है वो आपको सिर्फ रूल पता होना चाहिए, वहां तक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। BCNF हो गया, 4NF और 5NF। सिलेबस में भी आपको 3NF है, बट स्टिल आई विल हेल्प यू कि आगे के जो NF फॉर्म्स है वो कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, क्लियर? शैल वी स्टॉप हियर? ओके, यू मे लीव। ओके।